Hello everyone, welcome to Shivi. And our today's topic is whether preamble is a part of constitution or not, and whether preamble can be amended. Okay, so there was two significant cases in Supreme Court. First one was Berubari Union case 1960, and second was Keshwananda Bharti case 1973 versus State of Kerala. This one. So now let's look at the first case, Berubari Union case 1960. In Berubari Union case, Supreme Court has given the following observations. All right. So, Supreme Court has given following judgment. So, what the Supreme Court say? First point that preamble is the enter the interpretation of the Constitution. All right. So, what does first interpretation of the Constitution means? It means that if there are some terms used in any article of the Constitution which are ambiguous, एम्बिगुअस मतलब जो समझ में नहीं आ रहा हो, आपका कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एम्बिगुअस हो या जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो, which has more than one meaning, then some assistance, all right, some help of the preamble, help of the preamble can be taken. It can be taken. लिखने का जरूरत नहीं है, आप साइड में बना सकते हो नोट्स के लिए. It's your wish. All right. If there's if there are some terms which are ambiguous, then some help at interpreting the Constitution can be taken from the objectives enshrined in the preamble. All right. And second point क्या बोलता है? It is the key to the minds of the makers of our Constitution. It मतलब preamble हो गया. It is the key to the minds of the makers of our Constitution. So, Supreme Court, despite this recognition of the significance of the preamble, it observed that preamble is not a part of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था आपका कि it is a key to the minds of the makers of our Constitution, but it is not a part of Constitution. All right. So Berubari Union case में we have to remember only 3 points: that preamble is the interpretation of the Constitution. Preamble is the interpretation of the Constitution. It is the key to the minds of the makers of our Constitution. And third point, it is not a part of our Constitution. All right. ये बेरुबारी यूनियन केस के लिए था, फर्स्ट केस. So now let's move on to second case. Keshwananda Bharti case, 1973. It was versus State of Kerala. It landmark case, landmark judgment.
It was a 13 judge bench. All right. मतलब क्या 13 जज बेंच मतलब क्या 13 आपके टोटल में 13 जजेस इस केस में थे आपका वर्डिक्ट देने के लिए। सो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऑल राइट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन। कौन सा अर्लियर ओपिनियन? बेरुबारी यूनियन केस का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन ऑफ द बेरुबारी यूनियन केस। सुन लो यार, लिखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट rejected the earlier opinion of the Berubari Union case and it held that preamble is a part of constitution. लो जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या कि preamble is a part of constitution, and Supreme Court further observed that preamble is of extreme importance. Preamble is of extreme importance. Preamble of extreme importance, and constitution should be read and interpreted in the light of preamble. All right. So सुप्रीम कोर्ट ने यहां माना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी अपने रीड करेंगे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को अपने समझना चाहेंगे आपका, तो प्रियम्बल के अपना हेल्प ले सकते हैं। ऑल राइट, इट शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड in the light of noble visions expressed in the preamble. Thus, preamble is the integral part. Preamble is the integral part of Constitution. अब क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपने पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल्स। ओके, उसके पहले ये दो पॉइंट्स अपने जान लेते हैं। प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब प्रियम्बल के प्रोविजंस आपके कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, ठीक है। एंड प्रियम्बल, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। मतलब क्या? प्रियम्बल इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर नाइदर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन upon the powers of legislature। मतलब सिंपल है यार कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर नाइदर टू द लेजिस्लेचर, मतलब नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब क्या
कि अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है आपका, इफ लेजिस्लेचर इज मेकिंग अ लॉ, तो प्रियम्बल उसको रोक नहीं सकता है कि आप प्रियम्बल का हवाला देख के कि नहीं प्रियम्बल ऐसा बोल रहा है आप नहीं बना सकते हो ये लॉ, दिस इज नॉट जस्टिसिएबल, तो दैट कैन नॉट बी देन, ऑल राइट। सो इसीलिए वो नॉन जस्टिसिएबल है आपका, और ना ही वो कोई हिंड्रेंस है कि लेजिस्लेचर को कानून बनाने से रोक सके, ना ही लेजिस्लेचर उससे पावर डिराइव कर सकता है कि भैया प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है तो मैं उससे आपका पावर ले रहा हूँ। नहीं, प्रियम्बल इज नथिंग, जस्ट प्रियम्बल इट इज द प्रीफेस जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, इट इज ए प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल राइट। ये 2 पॉइंट हो गया आपका। अब अपने जो केशवानंदा भारती केस में पढ़े थे यहाँ पे कि केशवानंदा भारती केस में प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एंड इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड इट शुड be read, and constitution should be read and interpreted in the light expressed in the preamble, ठीक है। एंड केशवानंदा भारती केस में और एक आपका मुद्दा उठा था, और एक क्वेश्चन दैट वेदर preamble कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, वेदर preamble कैन बी amended under आर्टिकल 368, ठीक है। सो केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया था, द petitioner contended the petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the fundamental features or basic structure of the Constitution. All right. चलिए अब समझते हैं बेसिक फीचर्स। इसका पूरा डिटेल अपने आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, आपका बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा भारती केस। अभी के लिए बस आप इतना जान के रखो कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। पिटिशनर ने ये कंटेंट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट preamble can be amended but subject to the condition that amendment, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हाँ ये पॉइंट यहाँ है यार, preamble can be amended but subject to the condition that amendment does not, कहाँ लिखूँ, मिटा देता हूँ, I hope everyone has written it. But that amendment does not alter the basic features. ये बार बार बेसिक फीचर्स आप लोग को डाउट हो रहा होगा, टेंशन एकदम मत लीजिएगा, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका।
All right. So Supreme Court ने ऑब्जर्व किया कि preamble is a part of constitution and it can be amended, but that amendment should not alter the basic features of the constitution. So इसीलिए 1976 में 42nd Constitution Amendment Act CAA Constitution Amendment Act के तहत 3 वर्ड्स ऐड किया गया. ऑल राइट, 3 वर्ड्स: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. ठीक है. तो केशवानंदा भारती केस बहुत बड़ा केस है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. उससे डिटेल्स में अपने करेंगे, पूरा एक क्लास उस पर लग जाएगा आपको समझाने के लिए. फिलहाल प्रियम्बल का 2 क्वेश्चन एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने, कि आज का टॉपिक क्या था, कि वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर इट कैन बी अमेंडेड और नॉट. तो पहला केस था बेरुवारी यूनियन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिया कि preamble is the interpretation of the constitution. It is a key to the minds of the makers of our constitution, and though it is a key to the minds of the makers of our constitution, it is not a part of our constitution. सुप्रीम कोर्ट ने माना इसके सिग्निफिकेंस को प्रियम्बल का, बट सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी यूनियन केस में कहा इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजेक्ट कर दिया आपका बेरुवारी यूनियन केस का. सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर अपना जजमेंट को रिजेक्ट किया और उसने माना कि दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है आपका, इट इज प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या इट कैन बी अमेंडेड. आपका इसमें क्या हुआ था ना, आपका केशवानंदा भारती केस का पूरा डिटेल अपने पढ़ेंगे आपका, एकदम टेंशन मत लीजिएगा आगे. बस अभी के लिए आप इतना जान के रखो कि केशवानंदा भारती केस में प्रियम्बल को कहा गया कि इट कैन बी अमेंडेड, बट दैट अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स. ठीक है, दैट अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर इंश्राइन्ड इन द प्रियम्बल. ऑल राइट. अब तक प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है आपका, सिर्फ ओनली वंस इट हैज बीन डन, एंड 3 वर्ड्स वर एडेड which are the socialist, secular and integrity. All right. देखिए, अपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि अपने को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. अब आप सपोज करिए बेरुवारी यूनियन केस है, अगर अपने उसका डिटेल लेके बैठे हैं और पूरा डेप्थ में अगर जाएं, उसके बाद केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ उसका डेप्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है, उसको अपने कवर करेंगे, बहुत डिटेल्स में करेंगे. उसके बाद वो बेसिक फीचर्स और ये सब है आपका. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब तमाम सारे पॉइंट्स है जो केशवानंदा भारती केस में ऑब्जर्व किया गया था. इस पे लोग पीएचडी करते हैं आपका. आपको लॉ करना है, लॉ के बाद आपको पीएचडी करना है, तो यू गो इन द डिटेल्स, आप उसी में रह जाइएगा. यू वोंट बी एबल टू क्रैक यूपीएससी, एंड आवर मोटिव इज टू क्रैक यूपीएससी. हम यूपीएससी को अपना प्रीलिम्स का एग्जाम 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू का रिगार्डिंग दिस प्रियम्बल. अभी हम लोग नेक्स्ट आपका डिस्कस करने वाले हैं. 2020 में भी ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली आपका एमसीक्यू में, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आई होप वी विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट. ऑल राइट. सो अपना मोटिव है एग्जाम क्लियर करना. एग्जाम क्लियर करो और आगे बढ़ो. अपना मोटिव पीएचडी करने का नहीं है कि लंबा लंबा अपने को पढ़ना यूज, तो अपने उसी में रह जाएंगे. बॉस ये समुंदर है, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी. ऑल राइट, एंड वी विल डू दैट, एंड आई एश्योर यू
if you do smart study, if you are thinking smart, you will be easily be able to crack it. आप देखिए यूपीएससी एक अटेम्प्ट में लोग निकाल के ले जा रहे हैं, कईयों 5-5 अटेम्प्ट 6-6 अटेम्प्ट बीत जाता है, नहीं निकाल पा रहे। तो गलतियां अपने को समझनी पड़ेंगी कि दैट वेयर वी आर रॉन्ग, एंड अपने रेस्ट एश्योर इन सीवी each and every topic will be covered. All right, so now let's move on to our next question.